السلام علیکم، بولیز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر ایم کیو ایم نے حکومت کو گرین سگنل دے دیا، بدلے میں بلدیاتی اداروں کے لیے اختیارات بھی مانگ لیے۔ کراچی میں موجود لیگی وفد سنجیدگی سے غور کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ کوٹا سسٹم بھرتی کے طریقہ کار پر ایم کیو ایم قیادت کی حکومتی وفد کو آگاہ کر دیا گیا۔ احسن اقبال نے وزیر اعظم کا سلام ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو پہنچایا۔ ایم کیو ایم وفد ڈاکٹر خالد مقبول، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفی کمال اور دیگر پر مشتمل تھا۔ مسلم لیگی وفد میں احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ شامل تھے۔ آپ کو بتا چلیں کہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر ایم کیو ایم نے حکومت کو گرین سگنل دے دیا، بدلے میں بلدیاتی ادارے کے لیے اختیارات مانگ لیے ہیں۔ کراچی میں موجود لیگی وفد سنجیدگی سے غور کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کوٹا سسٹم بھرتی کے طریقہ کار پر ایم کیو ایم قیادت کی حکومتی وفد کو آگاہ، اور وفد میں احسن اقبال نے وزیر اعظم کا سلام ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو پہنچایا۔ اسی پر انہوں نے مزید کیا گفتگو کی ہے، کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کہ یہاں پر ان کی آمد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک آئینی ترمیم آنی ہے، اس سے ہمیں مزید آگاہی کی ضرورت تھی، وہ بھی ہمیں دی ہے، جس میں کہ آئی پی پی میں ایم کیو ایم کا کردار اور اس کے حوالے سے ہمارے اقدامات اور پیش رفت بات ہوئی ہے۔ جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے، اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں اور ان سے اس پیکج کے لیے حمایت کے لیے بھی درخواست کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے 16 ماہ کی جو حکومت اپریل 2022 میں قائم ہوئی تھی، اس کے اندر پاکستان کو اس معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے جس پر پی ٹی آئی کی حکومت ملک کو پہنچا چکی تھی، اس سے نکالنے کے لیے بہت محنت کے ساتھ کام کیا، اور ان 16 ماہ کے دوران ایم کیو ایم ہماری حلیف جماعت کی حیثیت میں پاکستان کی معاشی بحالی کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک رہی۔ اسی حوالے سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز خرم گلزار سے۔ جی خرم گلزار، بتائیے گا ایم کیو ایم کی جانب سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے، کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، ایم کیو ایم کی جانب سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ احسن اقبال نے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ مل کر جو ملک کی بھرپور ان کو حمایت حاصل ہے حکومت کو، جس سے ساتھ ہی جس سے ملک کی معیشت جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی، ایسا کہنا ہے احسن اقبال کا۔ ساتھ ہی حکومتی معاملات میں بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کی رہنمائی کرتی رہی ہے۔ بجلی کے بحران کے میں آئی پی ایس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی اپنی تجاویز دی گئی ہیں، ساتھ ہی آئی پی ایس کے دیگر مسائل کو حل کرنے میں بھی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کوئی بھی جمہوری شخص اس کی نفی نہیں کر سکتا، ایسا کہنا ہے احسن اقبال کا۔ ساتھ ہی آرٹیکل 58(2)B کا بار بار جو استعمال رہا ہے، اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اس کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ تاہم آئینی عدالت کے قیام آئینی ترمیم بل پر مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ پیرس میں جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی آئینی ترمیم کا عمل جو شروع ہوا ہے، اس میں کچھ جماعتیں ہیں جن سے انہوں نے وقت مانگا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں اس کو بھی دور کر دیا جائے گا۔ جی خرم گلزار تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کھیلوں کے میدان سے اہم خبر دیتے چلیں آپ کو کہ انگلینڈ کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بابر اعظم کو باہر کر دیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بابر اعظم آج شام کو ملتان سے واپس لاہور پہنچیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ساتھ ہی ساتھ فاسٹ بولر شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کو بھی ڈراپ کر دیا ہے۔ سرفراز احمد کا نام بھی 16 رکنی اسکواڈ میں شامل نہیں ہے۔ قومی اسکواڈ میں 6 نئے کھلاڑیوں کی شمولیت کا امکان ہے، جبکہ حسیب اللہ، کامران غلام، مہران ممتاز، نعمان علی، ساجد خان اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اسپورٹس جرنلسٹ ارشاد سے۔ ارشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد، بتائیے گا اس وقت قومی ٹیم کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، بابر اعظم کو ہی باہر کر دیا گیا ہے، مزید کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی یقیناً بابر اعظم کی جو ہے وہ گزشتہ کئی اننگز سے جو ہے وہ پرفارمنس ایسی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ ٹیم میں شامل رکھا جاتا۔ کل سے جو ہے یہ باتیں گردش کر رہی تھی، کیونکہ کل ملتان میں ٹیم مینجمنٹ اور سلیکشن کمیٹی، جو نئی سلیکشن کمیٹی اناؤنس کی ہے چیئرمین پی سی بی نے، ان کی کل بیٹھک لگی تھی، جس میں جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی نے بابر اعظم کو ریسٹ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے تھے، ان کو آرام نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس میں بھی جو ہے وہ
नज़र आ रही थी, एक चीज़ के ख़राब कारकर्दगी दिखा रहे थे, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप करने का फैसला किया, तजवीज़ दी सिलेक्शन कमेटी ने। लेकिन टीम मैनेजमेंट बज़िद थी कि बाबर आजम को जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए ताकि वो एक बड़ी इनिंग्स खेल सके। तो अब ये जब टीम का ऐलान हो चुका है तो इससे बाबर आजम जो है उनको ड्रॉप कर दिया गया है। अगले इंग्लैंड के खिलाफ जो बकिया 2 टेस्ट मैचेस हैं, जबकि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, फास्ट बॉलर नसीम शाह हैं, उनकी भी जो है वो टेस्ट स्क्वाड से छुट्टी हो गई है। इसके अलावा इजाफी विकेट कीपर सरफराज अहमद को भी जो है वो स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। 6 नए खिलाड़ियों को जो है वो तो स्क्वाड में शामिल किया गया है, जिनमें जो है वो कुछ नए खिलाड़ी भी हैं, जिसमें जो नए खिलाड़ी उसमें शामिल किए गए उनमें हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, महरान मुमताज़, नुमान अली और साजिद खान जो है वो स्क्वाड का हिस्सा है। और अब इन्हीं में से जो है वो 16 रुकनी स्क्वाड में से जो हतमी 11 खिलाड़ी हैं उनको जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए जो मंगल से शुरू होना है मुल्तान में ही, उसके लिए जो है वो टीम में शामिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इरशाद अली अपडेट करने के लिए। बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। एक के बाद एक शिकस्त, पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल। चेयरमैन पीसीबी टीम की कारकर्दगी से नाला। लाहौर में हंगामी इजलास में टीम की हालिया कारकर्दगी और खिलाड़ियों के फिटनेस का जायजा लिया। पिचेस को बेहतर बनाने की हिदायत भी कर दी। इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट में शर्मनाक शिकस्त, पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया। चेयरमैन पीसीबी भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर सख्त बरहम। मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी के साथ हंगामी मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने रात गए मेंटोर्स का इजलास बुलाया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने नई सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठक भी लगाई। टीम में तब्दीली की बातें हुई। मोहसिन नकवी ने पिचेस के मयार बेहतर करने की हिदायत की। खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने और फिटनेस का अमल रवां सीरीज के अख्ताम तक मुकम्मल करने का फैसला किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन के वज़ीर-ए-आज़म 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीनी प्रीमियर के हमरा आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचेगा। एससीओ के लिए इस्लामाबाद सच गया। एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सी पैक के दूसरे मरहले में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की एससीओ की तैयारियों के हवाले से गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा सी पैक के लिए बहुत मुस्बत साबित होगा। मलेशिया के वज़ीर आज़म का दौरा कामयाब रहा। सऊदी अरब से $2.2 अरब की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। एससीओ सरबराही इजलास की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। शहर में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए खैर मकदमी बैनर्स भी आवेज़ा कर दिए गए हैं। इस वक्त मज़ीद जानते हैं जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ फ़ाद चौधरी किस तरीके की इस्लामाबाद में ताज़ी आराइश की जा रही है, उनसे जानते। फ़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास को। इस हाई लेवल इवेंट के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एससीओ सरबराही इजलास जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी में जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। मैं अपने कैमरामैन उज़ैर को कहूँगा कि वो जूम करके दिखाएं कि भरपूर तैयारियां जो हैं मुकम्मल कर ली गई हैं। जिना कन्वेंशन सेंटर की रेनोवेशन कर दी गई है और इंतहाई खूबसूरती के साथ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को सजा दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वफूद के एज़ाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस्तकबालिया भी दिया जाएगा और 15 अक्टूबर से मेहमान वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिना कन्वेंशन सेंटर में 2 रोज़ा एससीओ सरबराही इजलास की मेज़बानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म जिनमें चीन, रूस, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान शामिल हैं, वो इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इन 3 रोज़ में रेड जोन में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी और सिर्फ खुसूसी सिक्योरिटी पासिस के हामिल अफराद जो है वो रेड जोन तक एक्सेस हासिल कर सकेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी 3 रोज़ के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। कल से मेट्रो बस सर्विस भी नहीं चलेगी और इसी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया है। जिला इंतजामिया की हिदायत पर 14 से 17 अक्टूबर तक
जुड़वा शहरों में मेट्रो सर्विस बंद रखी जाएगी। मेट्रो बस सर्विस की इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ आज के रोज मेट्रो बस सर्विस मामूल के मुताबिक चल रही है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में 8 ममालिक की आला शख्सियात शिरकत करेंगी। SCO का क़याम 2001 में अमल में आया। तंजीम का मकसद खित्ते में सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देना है। शंघाई ताउन तंजीम सियासी, इक़्तिसादी और माशी ताउन की तंजीम है। शंघाई में 2001 में चीन, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रहनुमाओं ने कायम की। 10 जुलाई 2015 को इसमें भारत और पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। पाकिस्तान 2005 से शंघाई ताउन तंजीम का मुबस्सिर मुल्क था। 2010 में पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम की रुकनियत के लिए दरख्वास्त दी। 2015 में बाकायदा रुकन बन गया। पाकिस्तान की शमूलियत से शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की तादाद 8 हो गई है। 9 जून 2017 को पाकिस्तान और भारत को तंजीम की मुकम्मल रुकनियत दी गई। SCO का इजलास हर साल मुनक्किद होता है। SCO के 8 रुकन ममालिक हैं: चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और 2023 में ईरान भी SCO का मुस्तकिल रुकन बन गया। PTI को तल अबीब से पॉलिसियां, हिदायत और हिमायत मिल रही है। बानी PTI इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस से मुतास करने के लिए सरगर्दा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का अहम बयान, कहते हैं बानी PTI पाकिस्तान में सह्यूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल और बानी PTI का गठजोड़ चाहता है कि किसी तरह शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस सबूताज हो जाए। ये पाकिस्तान में सह्यूनी मफादात के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का अहम बयान, कहा कि PTI और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान के कौमी मफादात पर समझौता है। मादी में भी बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। PTI क़यादत बैरून मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा है। PTI का थिंक टैंक इस वक्त तल अबीब में बैठा हुआ है। अब पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। PTI को तल अबीब से पॉलिसियाँ, हिदायत और हिमायत मिल रही है। बैनुल अक़वामी लॉबिंग के लिए तल अबीब में PTI के हैंडलर्स मुसलसल मुतहर्रिक हैं। बैरूनी क़ुव्वतों की जानिब से PTI की इमदाद का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना और पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सिफारती तरक्की को रोकना है। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ APC में PTI की अदम शिरकत ने PTI और इसराइल गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। मुल्क के मुस्तहकम इदारों के खिलाफ साजिशें और उन पर हमले इसराइली आशीर्वाद से किए जा रहे हैं। बानी PTI मुल्की इदारों को कमज़ोर करके सह्यूनी मफादात के लिए काम कर रहे हैं। बात कर ली जाए शरकायत से मुतालिक। शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। सिक्योरिटी के सुरंगी समेत FTC और 3 तलवार पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। सड़कें कहाँ से ब्लॉक हैं, रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। शहर कायद में आज से दफ़ा 144 का नफाज किया गया है और जिसके जलसे, जुलूस, रैली समेत जो है 5 अफराद से ज़ायद अफराद का एहतजाज करने पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है। FTC फ्लाईओवर समेत 3 तलवार और फवारा चौक पर जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है और उसके साथ साथ FTC और 3 तलवार पर रेंजर्स और SSU कमांडोज भी जो है वो मौजूद हैं। अगर हम शाहीन कॉम्प्लेक्स से गवर्नर हाउस की जानिब आते हैं तो ये रोड भी जो है वो ब्लॉक किया गया है। उसके साथ साथ मेट्रोपोल से गवर्नर हाउस आने वाला रोड, ज़ैनब मार्केट से गवर्नर हाउस आने वाला रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया है। शहरियों से यही अपील की जा रही है पुलिस की जानिब से भी और ट्रैफिक पुलिस की भी जानिब से भी कि इन एरियाज़ की तरफ जो है वो आने से इज्तनाब बरतें और दफ़ा 144 के तहत अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि बरतानिया में मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल 2024 में पाकिस्तान आर्मी टीम की शिरकत, बेहतरीन कारकर्दगी पर सोने का तमगा हासिल किया। मश्क कैम्बेरियन पेट्रोल के 65 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर पाकिस्तान आर्मी की टीम ने एक्सरसाइज कैम्बेरियन पेट्रोल 2024 में भरपूर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, शानदार कारकर्दगी दिखाई और सोने का तमगा हासिल की। इस मश्क के दौरान पेशावराना मयार को बरकरार रखने के लिए पेट्रोल टीमों ने नाहमवार जमीनों पर सलाहियत के जौहर दिखाए। 48 घंटों के अंदर 60 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा और मुश्किल माहौल में मश्क मुकम्मल की। इस साल 42 ममालिक से 128 टीमों ने इस मश्क में हिस्सा लिया था।
था। ये पूरी कौम और पाकिस्तान आर्मी के लिए एक फख्र का लम्हा था कि जब पेशा वराना महारत दिखाई और हमेशा की तरह पाकिस्तान आर्मी ने कौमी परचम बुलंद किया। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अमेरिका और इस्माइली कौंसिल के इश्तराक से ह्यूस्टन में मुनक़्क़दा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का खाका तब्दील हुआ है और अब पाकिस्तान जियो पॉलिटिकल के बजाय जियो इकनॉमिक्स की तरफ गामज़न है। अमरीकी रहनुमा ताहिर जावेद ने कहा कि पाकिस्तान का सिर्फ एक मसला है और वो है मईशत, जिसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। खबर शामिल करेंगे कराची वाले डाकुओं के रहमो करम पर। रवा साल अब तक डकैती मुजामत पर कत्ल होने वालों की तादाद 101 हो गई। फरवरी में सबसे ज़्यादा 20 अफराद को अबदी नींद सुला दिया गया। साल के 282 दिन जानलेवा डकैती की 101 वारदातें। कानून के रखवाले हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कराची वाले मालो असबाब के साथ जान से जाने लगे। जनवरी में 12 अफराद की माल के साथ जान ली गई। फरवरी में सबसे ज़्यादा 20 अफराद को कत्ल किया गया। मार्च में 17 और अप्रैल में दंदनाते लुटेरों ने 19 जिस्मों में गोलियां उतार दी। मई में 2, जून में 10 और जुलाई में छीना झपटी के दौरान 3 अफराद को अबदी नींद सुला दिया गया। अगस्त में डकैतों ने 7 और सितंबर में 9 अफराद के खून से होली खेली। अक्टूबर में 2 अफराद को लूटने के बाद कत्ल कर दिया गया। जारी आदाद शुमार के मुताबिक शहर कायद का ज़िला शर्क़ी 25 अमवात के साथ सर फहरिस्त रहा। ज़िला गरबी के 22, ज़िला कुरंगी के 17, ज़िला वस्ती के 14, ज़िला मलीर के 9 घराने प्यारों के कत्ल पर बेबसी के आंसू बहाते रहे। ज़िला केमाड़ी 8 और ज़िला जनूबी के 4 घरानों में सफ़े मातम बिछाई गई। भारतीय फौज में दाखिली दुश्मनियां उरूज पर पहुंच गई हैं और 2 की जंग ने इंतशार की फिजा कायम कर दी। पेशा वराना अहलियत पर सवाल खड़े हो गए। और 24 घंटों के दौरान इजरायली फ़ौज की दहशत गर्दी में मज़ीद 49 फ़लस्तीनी शहीद और 219 ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों की कुल तादाद 98,336 हो गई है। गज़ा की वजारत सेहत ने कहा है कि तिब्बी सामान और ईंधन की कमी से 4 लाख अफराद की ज़िंदगियों को ख़तरा है, जिनमें कमज़ोर बच्चे भी शामिल हैं जो ICU में हैं। दूसरी जानिब जनूबी लबनान में इसराइल की कमर्शल मार्केट पर बमबारी से कम अज़ कम 8 अफराद शहीद हो गए। इमारतों को आग लग गई है, जबकि हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 300 मिसाइल दाग दिए। 1 दर्जन से ज़ायद इजरायली ज़ख्मी हो गए हैं। 2 इजरायली फ़ौजी गज़ा और लबनान में लड़ाई के दौरान शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। तैयारा साजी की अमेरिकी कंपनी बोइंग कई रोज से हज़ारों मुलाजमीन की हड़ताल के बायस मुश्किल में आ गई है। 10% मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला कर लिया। ये तकरीबन 17,000 मुलाजमीन बनते हैं। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ईमेल पैगाम में कहा कि कई साल से माली दुश्वारी का सामना है, इसलिए आने वाले महीनों में हर सतह के मुलाजमीन की तादाद में कमी की जाएगी। कंपनी ने हथियार साजी और फौजी सामान बनाने के कारोबार में नुकसान का खदशा जाहिर किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।